हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ 2-4 ਟੌਪਿਕਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ, ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਆਪਟਿਕਸ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਂਪਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਦਾ +2 ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 SHMY ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਬ ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਿਸ ਫਿਰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਫਿਰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ, 2 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਇਹ ਬੋਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਪਿਸ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -kx। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੋਰਸ ਲੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਕ SHM ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ SHM ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਿੰਗਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? SHM। ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -kx, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -F/m x। ਦਿਸ ਇਜ਼ here is k,
के अपॉन एम इज़ अगेन ए कॉन्सटेंट क्योंकि मास भी कॉन्सटेंट ही होंगे, तो आपने ये भी कह सकते हैं कि एक्सलरेशन इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि एक्स डिसप्लेसमेंट है तो वह डेरीवेटिव वेलोसिटी होगी, उसका वेलोसिटी का भी डेरीवेटिव की होगी एक्सलरेशन। तो अपने को आप इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये भी अपने को एस एच एम नू रिप्रजेंट कर रही है। हुण एस एच एम के कुछ करैक्टरिस्टिक्स की ने, देखो पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम बाद रिपीट हो रहा है, टू एंड फ्रो होंगे अबाउट मीन पोजीशन, जिमें इस केस ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम्स ने, इस केस ये मीन पोजीशन है, दोनों एक्सट्रीम्स ने, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। एंपलीट्यूड फिक्सड होंगे। एंपलीट्यूड की होंगे मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट, जिमें कोई अपने को ये बॉक्स है सपोज इत्थों तो लैके इत्थे तक की डिसप्लेसमेंट 5 मीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। हुण विच दी किसी इस पोजीशन ते भी होगा, मतलब विच भी कोई पोजीशन होगी, बट वो डिसप्लेसमेंट है जी ये वाली डिसप्लेसमेंट तो घट होगी, मतलब मैक्सीमम जी डिसप्लेसमेंट होंगी है उन्होंने आप की कहने एंपलीट्यूड, कि कोई पार्टिकल मैक्सीमम किन्नी दूर गया वो अपने कोल की हुंदा है एंपलीट्यूड। ठीक है, मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट में एंपलीट्यूड कहना है, तो एंपलीट्यूड की हुंदा है फिक्सड हुंदा है। 5 सेंटीमीटर है उस तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊगा, 5 सेंटीमीटर तक ही जाऊगा, फिक्सड है। ये फ्रीकुएंसी भी फिक्सड होंगी है, मतलब किन्नियां ऑसिलेशनस हुई एक सैकेंड दे विच अपने को फ्रीकुएंसी होंगी है। बहुत बेसिक जी चीज़ है कि किन्नियां ऑसिलेशनस हो रही हैं एक सैकेंड दे सपोज एक सैकेंड दे विच ये सिंपल पेंडुलम ने अपन 5 ऑसिलेशनस कंप्लीट कीतियां, तो 5 की होगी फ्रीकुएंसी। जो ये फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम बाद ही रिपीट हो रहा है तो ये फ्रीकुएंसी भी की होगी फिक्सड ही होगी। उस बाद फोर्स मोशन अपोज कर रहा है, ये भी आप चीज़ कर चुके। उस तो बाद ਇਹਦੀ रिप्रजेंटेशन आप अगे करांगे कि इनू साइन ਜਾਂ कोसाइन ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ फंक्शनस जिन्होंने आप कहने ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक्सप्रैस करते हैं। गल करिए मैथेमैटिकल रिप्रजेंटेशन की, जो सिंपल हारमोनिक मोशन है। ठीक है, आप एक सिंपल हारमोनिक मोशन लैके चलते हैं। अपने को जो कोई ऑब्जैक्ट है अगर वो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस से रोटेट कर रहे है, ठीक है, जिमें ये बॉडी है ये सरकमफ्रेंस से रोटेट कर रही है, ये अपने को मतलब किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के नाल रोटेट कर रही है। सपोज इस ए पोजीशन पर पहुँच गया पार्टिकल रोटेट करदा। ठीक है, तो अपने कोल ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन होगी, ये वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन होगी। तो जी इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस के उपर तो वाई एक्सिस के उपर प्रोजेक्शन है वो अपने को प्रोजेक्शन है जी वो भी एज एस एच एम बिहेव करती है। मतलब जी सपोज जो पार्टिकल इत्थे है तो प्रोजेक्शन इत्थे होगी, तो जी प्रोजेक्शन है भी सिंपल हारमोनिक मोशन की तरह बिहेव करती है। ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है डिसप्लेसमेंट। सपोज आप एक केस लैके चले पार्टिकल सर्कल के अबाउट रिवोल्व कर रहा है, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस से रोटेट कर रहा है, तो अपने को सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के नाल करदा इत्थे पहुँच गया पी पोजीशन ते इत्थे दे कोआर्डीनेट्स की ने एक्स वाई। तो अपने कोल सपोज ये पार्टिकल जोड़ा सर्कल है इसका रेडियस सपोज ए है, ठीक है, तो यह जोड़ा पार्टिकल है मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट ये कितनी होगी ए। एंपलीट्यूड आप पिछे गल की सी, तो एंपलीट्यूड की होगा ए इस एक्स एक्सिस से वाई कोआर्डीनेट की होगा 0, तो इतने कोआर्डीनेट्स की हो गए ए 0। जो इस पॉइंट पर पहुँचूगा तो एक्स कोआर्डीनेट 0 हो जाऊगा, वाई कोआर्डीनेट ए हो जाऊगा, तो इतने की हो गए 0 ए। इस पॉइंट पर आके एक्स कोआर्डीनेट माइनस ए, वाई कोआर्डीनेट 0, तो माइनस ए 0, तो इतने अपने को 0 माइनस ए। तो अगर आप गल करिए प्रोजेक्शन की, ठीक है, तो अपने को देखो ए मैक्सीमम वैल्यू भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, जो एंपलीट्यूड है। अगर आप प्रोजेक्शन की गल करिए ये अपने को अपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सपोज, तो अपने को जो ए वैल्यू है ये वाई होगी, तो जो ए वैल्यू है अपने को एक्स होगी। सपोज आप वाई फाइंड आउट करते हैं पहले इस ट्रैंगल के विचों, तो देखो अपने को इस ट्रैंगल के विचों ए अपने को रेडियस ऑफ दी सर्कल कितनी आप लैके चले हैं ए, तो वाई अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का इक्वल होगा साइन थीटा दे। हुण पहला थीटा ही डिफाइन करते हैं। देखो अपने आपको पता है वेलोसिटी जी होंगी है वो डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होंगी है। इत्थे अपने को जी आप एंगुलर वेलोसिटी की गल कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की गल कर रहे हैं, थीटा एज डिसप्लेसमेंट आप क्वांटिटी लवांगे क्योंकि ये थीटा चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ चेंज हो रही होंगी है फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने आप डिसप्लेसमेंट लेने। तो वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम
इत्थे वेलोसिटी एंगूलर वेलोसिटी लैके चले हैं तो डिसप्लेसमेंट भी थीटा ही लवांगे तो थीटा काहदे इक्वल हो जाएगा ओमेगा टी दे। हुण इस ट्रायंगल दे विच आपां नूं पता है वाई अपॉन ए अपने कोल काहदे इक्वल होगा साइन ओमेगा टी दे तो वाई ए साइन ओमेगा टी तो ये अपने कोल डिसप्लेसमेंट होगी अलोंग वाई एक्सिस। बट जो आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेना होवे तो आप की लवांगे एक्स अपॉन ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आ जाएगा अपने कोल। अगर आप लैके चलीए ऐसा केस जिहदे विच सपोज इनीशियली पार्टिकल इत्थे पे है, ठीक है, इत्थों इस पोजीशन ते जा रहा है, इनीशियल फेज़ कितना उहदा फाई मतलब ओमेगा टी फेज़ कवर करके इस पोजीशन ते जा रहा है। इत्थे सेम केस होएगा बट इत्थे अपने कोल फेज़ कितना हो जाएगा टोटल ओमेगा टी प्लस फाई तो एक्स ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा तो वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई तो इत्थे फाई की है इनीशियल फेज़, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी अपने कोल डिसप्लेसमेंट दा डेरीवेटिव दे इक्वल हुंदी है तो डिसप्लेसमेंट का जो आप डेरीवेटिव लवांगे तो देखो डिसप्लेसमेंट ए कॉस ओमेगा टी है, डेरीवेटिव लवांगे तो अपने कोल विद रिस्पैक्ट टू टी लै रहे हैं, कॉस का डेरीवेटिव माइनस साइन हुंदा है, ओमेगा टी का डेरीवेटिव ओमेगा आ जाएगा। इनू अगर एक्स की फॉर्म च रिप्रेजेंट करना है तो आप साइन ओमेगा टी नू रूट ऑफ साइन स्केयर ओमेगा टी लिख सकते हैं। आपको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 के इक्वल होंगे तो साइन स्केयर थीटा नू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा लिख सकते हैं। सॉल्व करके अपने कोल की आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर तो ये अपने कोल वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का भी डेरीवेटिव होंगे, वेलोसिटी अपने कोल माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया सी, उसका डेरीवेटिव लवांगे तो साइन का डेरीवेटिव कॉस होंगे, ओमेगा टी का डेरीवेटिव ओमेगा हो जाएगा तो माइनस ए ओमेगा स्केयर कॉस ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी अपने कोल किससे इक्वल है एक्स दे, ए कॉस ओमेगा टी तो एक्स है ना अपने कोल तो आप एक्स पुट कर देंगे तो अपने को ए की वैल्यू की आ जाएगी माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। देखो इतों भी वो चीज़ वेरीफाई हो रही है ना, एक्सेलरेशन इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू नैगेटिव ऑफ डिसप्लेसमेंट जो आप पहला गल करके हटे हैं, ठीक है। तो ये अपने को डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी की एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है। ये तो चलो आप एक सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल लै ली, ये तो अपन फेज़ का कॉन्सैप्ट समझ आता है बट अपने अपने मन से डाउट भी होगा कित्थे एक्स लैना है कित्थे वाई लैना है कित्थे आपां मतलब जेड़े पेंडुलम का केस है वो केड़ा फेज़ होंदा है, ठीक है। अपने माइंड च कॉन्सैप्ट आते हैं बट देखो पहला एक्स ते वाई का ही कॉन्सैप्ट समझो। अपने को अगर किसी भी पार्टिकल का इनीशियल एंपलीट्यूड है जोड़ा वो ए है, ठीक है। जिमें आपां एग्जाम्पल लैके चलते हैं सपोज किसी पेंडुलम का इनीशियल पोजीशन ए है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन ते इनीशियली वो फिर वो मेन पोजीशन ते आया फिर वो दूजे एक्सट्रीम पोजीशन ते गया तो उत्थे पहला अपने को एंपलीट्यूड इनीशियल एंपलीट्यूड की सी ए फिर मेन ते आया 0 फिर दूजे एक्सट्रीम ते गया माइनस ए फिर मेन ते आया 0 तो वह एंपलीट्यूड पहला ए सी फिर 0 फिर माइनस ए फिर 0, ठीक है। डिसप्लेसमेंट तो आप उत्थे एक्स लैके चल पाएंगे, देखो ए 0 माइनस ए 0 इस तरीके नाल एक्स की वेरिएशन हो रही है ना। बट अगर कोई पेंडुलम पहला मेन पोजीशन ते है फिर एक्सट्रीम ते गया फिर मेन ते आया फिर एक्सट्रीम ते गया मतलब मेन तो स्टार्ट होया वह एंपलीट्यूड इनीशियली वो डिसप्लेसमेंट कितनी सी 0 फिर ए हुई फिर 0 हुई फिर माइनस ए हुई, ठीक है। तो इत्थे आपां वाई लैके चलांगे, वाई के अकॉर्डिंग एवें है ना 0 माइनस ए 0 ए 0 माइनस ए तो ये तो सिंपल जा कॉन्सैप्ट है। अगर पहला अपने को मैक्सिमम एंपलीट्यूड है मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट है तो आप उत्थे एक्स लैके चल पाएंगे, अगर इनीशियली 0 है डिसप्लेसमेंट तो आप वाई लैके चल पाएंगे। तो सिंपल जा कॉन्सैप्ट है, ये ज़्यादा कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि फेज़ का कॉन्सैप्ट अपने को सिंपल पेंडुलम के केस के विच भी हुंदे। सपोज आप कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम 5 डिसप्लेसमेंट मतलब कर रहा है एंपलीट्यूड उसका 5 है, ठीक है। तो जे आप गल करते हैं 5 एंपलीट्यूड की 5 एंपलीट्यूड तो किसी भी ऑसीलेशन हो सकता है। आप कह रहे हैं 5 डिसप्लेसमेंट है बट वो 5 डिसप्लेसमेंट फर्स्ट ऑसीलेशन की भी हो सकती है, सैकेंड ऑसीलेशन भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, मतलब ऑसीलेशन कितनी है आपको वो भी तो पता होना चाहिए ना भी कितनी ऑसीलेशन है। तो आप इत्थे लैके चलते हैं कि अगर इत्थों इत्थे तक गया तो उत्थे π/2 का फेज़ होया, वापस आया पाई का फेज़ कवर हो गया, उस तो बाद वापस गया पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2 का फेज़ कवर हो गया, अगेन वापस आया 3π/2 प्लस π/2 मतलब इत्थे तक आके 2π का फेज़ कवर हो गया, अगेन वापस उत्थे गया तो सैकेंड ऑसीलेशन के 2π प्लस π/2 होया। तो मतलब जे आपां नूं इस तरीके नाल दिता होवे कि 5 फेज़ है
cos 2π + π/2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਨ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 1 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਗੂਲਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ θ/t ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2π, ਪੂਰਾ 2π ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ t ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ 2π/t ω = 2π/t ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ SHM ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ SHM ਦਾ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ।